ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਦਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चोटा ना खाए, मन्ने जम के सास ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੜਤਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਭਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤ
ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਰੈਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਮ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਵਾਂਗ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਛਿਪੇ ਸੱਤ ਵੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥਿਰ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਿਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੇ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ,
आत्मिक शांति, स्थिरता और विश्राम भी मन दे अंदर है। इसलिए साहेब ने इन्हू नाम कहा है। दरअसल हजूर दी संगत साहेब नाल कुछ कदम बाणी दे चलन नाल मन दे विच रंग चढ़ जाता है। जदों गुरु की गल सुनना शुरू कर दिंदा है मन, तो भाव की है सुनन तो कि वो अब्जॉर्व कर लेंदा है, वो जान लेंदा है कि इन्हां चीज़ां नूं, इन्हां गुणां नूं, इस ज्ञान नूं, गुरु दे दर्शन नूं मन विच हाजिर करना जरूरी है। तां वो मन दा सत दा भुखा गुरु दी गल नूं मन विच बिठांदा है, मन विच इकमिक हो जाता है गुरु नाल। मन करके गुरु दे नाल ट्यून बिठा लेंदा है, मन करके गुरु दे नाल रास्ता बिठा लेंदा है, मन करके गुरु दे नाल सांझ बिठा लेंदा है, एक रिश्ता बिठा लेंदा है। हुण परिवार गुरु बन गया, माता भी बन गया, पिता भी बन गया, सारे रिश्ते, सारे शक्ति जिहड़ी दुनिया विच लगदी सी वो हुण गुरु दे नाल संबंध जोड़न च लग गई। इस करके सुनन दा गहन एक्सपीरियंस साहेब ने सानू दस्सिया है। जदों गुरु दा पूरी तरह विचार सुन लिया, मन विच बिठा लिया, मन नूं रंग दिया गुरु नाल, इहदे लई कोई मीडियम चाहिए, कोई रस्ता चाहिए, किवें गुरु नाल मिल के बिठावांगे। तो महाराज ने शब्द साडे लई प्रगट किया है। शब्द अगर फुल है तो उस फुल नूं किसी टहनी च बिठाना है, उस फुल नूं किसी तरह पेश करना है। इहदे लई सुरत दी लोड़ है। सुरत स्टेबल माइंड दी वो अवस्था है जिहड़ी एकाग्र है, जिहड़ा एक मन हो गया है। सत दी सेज नूं बिठाण वास्ते अगर साडे कोल स्थिर वस्तु नहीं होएगी, मन विच स्थिर समा नहीं होएगा, स्थिर स्थान नहीं होएगा, तो सत नूं नहीं बिठा पावांगे। असीं देखांगे, समझांगे, पर क्योंकि मन खड़दा नहीं है, इस करके असीं होर तरफ चल पावांगे। इउं जापदा होएगा जिवें असीं हाले कन्विंस्ड नहीं हाँ जीवन बारे, जिवें जीवन दी चोटां नूं पैशन दे जरिए असीं हाले समझिया नहीं है, जिवें जीवन नूं जींदे जींदे असीं रस्ते चों जिहड़े भुल गए रस्तियां, असीं उन्हां चों यह नहीं समझे हाँ कि सानू सहारा चाहिए है। असी हाले अपने आप नूं सेंटर बनाई फिरदे हां। असी हाले यही मनदे हां कि मेरे करके गुरु है, मेरे करके सृष्टि है, मैं आधार हाँ, मेरे करके रब है। हाले मैं ही सेंटर हाँ। पर सुनन दा भाव यही है कि मैं सुन लिया कि मैं जीवन दा सेंटर नहीं हाँ, निरंकार जीवन दा सेंटर है। मैं तो एक ट्रांजिएंट बीइंग हाँ। यह बुद्ध की गल आ गई है। मन विच जदों सुरत दा ज्ञान हो गया, शब्द नाल सांझ हो गई, तो मन विच बुद्ध आ गया। मन जग गया सत नूं, मन जान गया हुण, मन नूं ज्ञान हो गया हुण जीवन बारे, मन की बनत बारे, सुख और दुख बारे। और इस शब्द दे और सुरत के ज्ञान चों सानू लभ्या है। मन दे हनेरे विच हुण बुद्ध दा
प्रकाश हो गया है। सुरत शब्द बड़ा प्यारा है। इस शब्द विच सुरती का रिलेशन है। सुरती जिहड़े ज्ञानवान ने, और सुरत का शब्द बार बार पानी विच भी आंदा है, और उन्होंने स्थानां ते आंदा है जिथे जिथे जीवन दे उडारी दी गल चलदी होए। यह सुरत एकाग्र मन है, और जिहड़ी सुरत शब्द नूं लभदी है या सच नूं लभदी है, वो बुद्ध हो जाती है। जिवें कि सारा जीवन की सारी शक्ति सुरत विच आ गई होए। सुरत विच हुण एबिलिटीज हन। मैं इंद्रियां के जरिए जीवन नाल रिलेट करता हाँ। मन जिहड़ा है इंद्रियां के जरिए जीवन नाल फिजिकल प्लेन ते रिलेट करता है। पर अगर मैं अपने आप नूं इंद्रियां तो तोड़ लवां या इंद्रियां तो हटा लवां कुछ देर लई, तां वो जिहड़ी शक्ति बाहर नूं जा रही है मेरे मन विच निवास करना शुरू हो जाएगी। वो शक्ति एकाग्र हो जाएगी, क्योंकि बाहर नूं खिंडाव विच है और अंतर विच एकाग्र है। जदों अंतर शक्ति एकाग्रता वल जाएगी तो सुरत का ज्ञान हो जाएगा। मेरे मन विच सुरत एक मन दी शांति भी आएगी, क्योंकि खिंडिया मन शोर विच रहिंदा है। खिंडिया मन जिहड़ा है सानू साडे अंतर तो तोड़दा है। सुरत सानू अंदर नाल जोड़दी है। सुरत दी वरतों झूठ वल भी हो सकती है, विकारां वल भी हो सकती है, क्योंकि एकाग्र मन है। असी विकार वल जाइए तां भी असी एकाग्र मन नूं उत्थे वरत सकते हैं। दुनिया विच ब्लैक मैजिक भी इस तरह होया है, पर गुरमत ज्ञान विच पहले असी गुरु वल मुख करके गल करन दी गल क्यों करते हैं? क्योंकि साडे नाल नाम चल रहा है। नाम उसदा है जिहदा सानू पता नहीं पता। नाम उसदा है जिहड़ा आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम, जिसने पहले अपने आप नूं बना के फिर नाम नूं रचिया है। नाम साडा ब्रिज है, रास्ता है निरंकार दे घर जाण वास्ते, सत दे घर जाण वास्ते। सुरत वो शक्ति है जिन्हों वरत के मैं शब्द दे शिखर ते जा सकदा। तां मन्ने दी गल जदों है, दो लावां ने इहदे विच हुण। यह गल मन की अवस्था की गल हो रही है। जेड़ा मन की अवस्था की होएगी, तां यह गल हो रही है सुरत दी। मने सुरत होवे मन बुद्ध। मन हुण बुद्ध की अवस्था च पहुंच गया। सुरत हो गई, एकाग्र हो गई, और बुद्ध की अवस्था च पहुंच गया। बुद्ध की अवस्था की है? ज्ञान हो जाना कि मेरा सुख और दुख और मन की मेरी बनत की है। मेरा विकास, मन का विकास किथे रखिया है। दुख और पाप ए किथे ने मन के अंदर, और नाम नाल मैं इन्हां तो उपर किवें उठ सकदा हां। मेरे अंतर दे प्रकाश का रस्ता किहड़ा है? यह मन की बनत की गल्लां चल रही हैं। महाराज ने सानू बुद्ध शब्द वरतिया है। बुद्ध शब्द गौतम बुद्ध तो प्रेरित होकर बनया है।
ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਰਤ और शब्द का ज्ञान हो गया, सत मिल गया। जितना चिर जंगल फिरदे सी, सुरत का ज्ञान नहीं सी, फिरदे ही लंघदा सी जीवन सारा, हथ विच कुछ नहीं सी आंदा। उस फिरन करके नहीं मिलिया है, सच्ची भुख करके मिलिया है। सच्चे आनंद की भाल करके सत मिलता है। जिस पासे नूं असीं मूंह करदे हां जीवन विच, उही सानूं दर्शन हुंदे हन। तां जिहड़ी दर्द की चोट सिद्धार्थ नूं लगी जीवन बारे, उसे ने उहनूं बुद्ध वल तोरिया है। उस चोट नूं, चोट की शक्ति नूं, चोट की सूझ नूं, भावें उन्हें बड़ा समा खराब किया होए, पर जदों बुद्ध मिलिया, उस पुकार करके मिलिया कि मैनूं सत दी पाल है। क्योंकि जदों असी पैशन नाल पुकारांगे, यानी भावना नाल पुकारांगे, तां मन सुरत बन जाएगा। तां सुरत विच प्रेम भी हाजिर है। अगर वो सत दे वल दर्शन करन दी पाल रखदा है तां उहदे च एकाग्रता है, शक्ति है और प्रेम है। यह सुरत का ज्ञान हो गया। तो जदों असीं बैठ के मन एकागर कर लीए और प्रेम नाल भर जाइए, तो समझ लेना सुरत का ज्ञान हो गया। जब सुरत बुद्ध हो गई, तो आनंद के दर्शन भी हो गए। और उस तो अगे भी पड़ाव महाराज दसते हैं, फिर अगे चल के विचारांगे। मन विच बुद्ध आ गया, मन विच ज्ञान आ गया, मन विच तत्व के दर्शन हो गए। एक चीज तो असी शुरू तो जीवन तो परेशान हाँ, वो है चेंज। जीवन में जदों ज्यादा चेंज आता है, ज्यादा अनसर्टनिटी होती है, सानू परेशानी लगती है। क्योंकि हर चेंज नूं डील करने वास्ते शक्ति लगती है, एनर्जी लगती है, और वो शरीरक होए कि ना होए, मानसिक लगती है, जरूर मन करके लगती है। नवे लोगों नूं मिलना, नवे स्थानां विच जाना, नवी चीज़ां करना तां ही सौखा होंदा है जदों सानू उहदा चाव है, असीं चाहते हैं करन दा, उहदा प्रेम रखते हैं। पर अगर जीवन में बार बार चेंज आता रहेगा, तो असीं व्याकुल होना शुरू हो जावांगे। क्योंकि मन करके सानू चेंज पसंद नहीं है। असीं भ्रमण तो एनर्जी बाहर ही जाती रहती है। मन एक स्थिर अवस्था लभदा है, क्योंकि असी सुख लभदे हैं, और सुख सदा ही लभदे हैं। तो सदा शब्द तां ही वरत्या जाएगा जदों मन स्थिर होएगा। ऐसे करके जदों असी नाम दे विच लीन होंदे हैं, तो समा नहीं रहिंदा, बदलाव नहीं रहिंदा। मन दे अंतर दे जान विच सानू समय दी सोझी घट जाती है। जदों बदलाव नहीं रहिंदा, नाम रहिंदा है। सब तो ज्यादा बदलाव दुनिया विच, सब तो वड्डा चेंज दुनिया विच मौत है, जिन्होंने असी मौत करके जानते हैं। मौत की है वो चेंज ते साडा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। जदों साडा शरीर और मन का संबंध टूट जाता है, और सानू भरोसा है कि असी नहीं होवांगे, असी सुरत के ज्ञान नूं पूरी तरह समझ लीए,
कि यह सुरत मेरे मन की फोकस्ड माइंड की एबिलिटी है, प्रेम नाल भरी हुई एबिलिटी है, और ये पावर शक्ति भी है। जिस पासे इनू ले जावांगे उस पासे मन का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो साहिब ने क्या सुनिया है, असी सत नूं सुनिया है। जो सत नूं सुन लिया, असी मनन किया है, मन दे विच रंग चढ़ गया, मन की वो अवस्था हो गई जो बुद्ध दी है। सानू ज्ञान हो गया जीवन का, जीवन के तत्व बारे अवेयरनेस हो गई है। बाहर भी सब कुछ उसी तरह ही है, परिवार भी चलता है, कारोबार भी चलता है, अंतर में सब कुछ बदल गया हूँ। क्योंकि अंतर में इन्ना बदलाव आ गया, इसके बाहर नूं देखते भी सानू फर्क दिखता है। दरअसल रियलिटी की बड़ी डायमेंशनस हैं। असी रियलिटी नूं सिर्फ इंद्रियां करके जानते हैं, जो देखिया, जो सुनिया, जो टच किया, जो महसूस किया, जो टेस्ट किया, जो स्मैल किया, असी उसे डायमेंशन नूं सच जानते हैं कि यह है। पर मन की एकाग्रता नाल सानू यह भी समझ आनी शुरू हो जाती है कि इस तो परे भी कुछ है। यह सारा दुनिया जिहड़ी सानू दिखती है, इतना चेंज जिहड़ा नजर आ रहा है, एक खेड है। इसके आधार सानू बहुत ज्यादा आधार इहदा नहीं रहिंदा फिर, क्योंकि ज्ञान विच बुद्ध मन विच आ गया है, ज्ञान हो गया है कि जदों मैनू इस दुनिया की फिजिकल प्लेन चो आनंद की भाल नहीं रहेगी, जदों मेरी सर्च आनंद की अंतर विच गुरु दे मिलन नाल प्रगट हो जाएगी, तो मेरा आनंद बाहर से डिपेंड नहीं करेगा, हूँ इंद्रियां से डिपेंड नहीं करेगा। हूँ हो सकता है मन नूं प्रेर ले कोई, बट उससे कोई आधार नहीं है। फाउंडेशन जीवन की बदल गई है। हूँ जो मैं बाहर नूं जरूर सी, हुण मेरे अंतर के दर्शन नाल बाहर से डिपेंडेंस हट गई है। ਇਹਦਾ मतलब बाहर हुण रियलिटी नहीं रहा, बाहर इतनी ही रियलिटी है कि जितना मैं अंतर दे प्रकाश नाल बाहर नाल रिलेट कर लवां, अंतर बाहर एक हो जाने। जब अंतर का ज्ञान हो गया, फिर मैं उस नाल बाहर नाल जो कनेक्ट करांगा, मैनू वो रियलिटी दिखता है। बाकी हुण रियलिटी उस तरह नहीं दिखेगा जिस तरह पहले दिखता सी। तां यह जिहड़ी चेंज का मेरा डर है कि जीवन में बदलाव आएगा और मैं नहीं होवांगा, कि जीवन में इहो जिहा इंसिडेंस आएगा जदों मेरी होंद नहीं रहेगी। यह सिर्फ फिजिकल प्लेन की रियलिटी है, जो मैं फिजिकल प्लेन तो जानिया है। पर जदों मेरे मन दे विच सुरत का ज्ञान आ गया, सुरत बुद्ध हो गई, तो मैनू यह ज्ञान हो गया फिर कि मेरा जीवन बाहर ते तो आधारित है ही नहीं। तब मने सुरत हो गए मन बुद्ध, मने सगल पवन की सुध, हुण सारे भवना की सुध हो गई। पवन तो भाव कई बारी लोग जेडे जपजी की व्याख्या करते हैं, हम सृष्टि की गल करते हैं, वो तो ठीक है, एक भाव नाल कहा जा सकता है। पर मेरी सारी सृष्टि का ज्ञान मेरे मन के अंदर तो है। अगर मैं मन की बनत नूं जान लिया, मैं सारी सृष्टि नूं जान लिया। मैनूं लगता है कि यह मन नाल ज्यादा वाह है। अगर मैं अपने मन के अंतर की तह नूं जान लिया, तो मैं उस आनंद और निरंकार नाल जुड़ गया, जिहड़ा तत्त है ज्ञान दुनिया का। यह सारी दुनिया का ज्ञान हो गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਚੇਂਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਕੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਗਲ ਪਾਵਨ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੇਂਜ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਗਲ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ। ਚੋਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट। मेरा जीवन एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट के साइकिल च घूमता रहता है। मैं एक्सपेक्ट करता हाँ, फिर डिसअपॉइंट होता हाँ। और जो एक्सपेक्टेशन रियलिटी तो दूर होती है तो उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता। ਜਿਹੜੀ एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी हो गई वो मीनिंग नहीं रखती, ਜਿਹੜੀ पूरी नहीं हुई वो डिसअपॉइंटमेंट ਵਿੱਚ बदल गई। मैं चोट खांदा रहा, मन चोट खांदा रहा। मन सोच ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਟੋਰੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤ ਦੁਐਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ, ਚੇਂਜ ਵੱਲ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਅਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। जितने रिश्तेदारियां ने, जो मेरी सबके संबंधी ने, जो मेरा स्टेटस है, सिर्फ मेरे को यही है जीवन विच।
वो नहीं होएगा। मैनू यह भी नहीं पता कि नाम होएगा कि नहीं होएगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जींदे जी मैं मरिया नहीं हाँ। जो नाम दे जप विच तप बदली होएगा, उसी तपश विच झूठ खत्म हो जाएगा, तो फिर ज्ञान हो जाएगा। तभी मन सुरत, मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन बुद्ध हो गया, फिर उन्हें ज्ञान हो गया कि भाई ऐ हुण मेरी जो मौत दी दा चेंज मैनू दिखता है। किवें ज्ञान होया? क्योंकि सुरत की एकाग्रता विच शरीर तो भी टुट सकता है, जान सकता है कि शरीर मैं नहीं हाँ। जो मन की इस अवस्था नू जान लिया, जिसने मन की इस अवस्था नू पछाण लिया और जी लिया, बुद्ध हो गया, वो अगे फिर मुंह की चोटा नहीं खाएगा, क्योंकि उन्होंने हुण सुख की एक्सपैक्टेशन बाहर तो नहीं है कि शायद सुख होएगा, अंतर विच है, जिथे सुख उहदे कोल हाजिर है। थोड़ा जिहा समझना जरूरी है कि जदों साडे विचार विच इस तरह के जदों दरवाजे खुलते हैं, तो यह नहीं है कि जीवन का फिजिकल प्लेन पूरी तरह खत्म हो गया है, वो भी नाल नाल चलता है। तो यह अवस्था फिर भी चलती है कि एक प्लेन विचों फिर भी उस तरह जींदा जिवें पहले जींदा सी, पर उन्हां डिसअपॉइंटमेंट्स नूं और उन्हां इंसीडेंसिस नूं हुण उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले हुंदी सी। अगर है भी तो उन्होंने मानसिक तौर पर मन के रूप विच, वो आनंद के रूप विच ही जाणगियां। किवें कि अगर मैं मन विच जीवन विच एक एक्सपैक्टेशन नाल जी रहा हाँ, एक उम्मीद नाल मैं जिया हाँ, और उस उम्मीद तो मैनू निराशता मिलती है, तो उस निराशता नू लैके मैं उपराम होकर किधर जावांगा? क्योंकि मेरे अंदर के दरवाजे खुले हैं, मैं अंतर जावांगा, और अंतर विच आनंद है। इस भाव विच जितने भी इंसीडेंसिस उस नाल होंदे ने, जिहड़ा बुद्ध हो गया, वो उन्होंने आनंद विच ही कन्वर्ट कर लैंदा है या हो जाता है। यूं समझिए कि जिवें हो जाता है, जिवें हुक्म होए, आनंद एक हुक्म है। तो महाराज गल की है कि आगे चलते हुए मुंह तो भाव दो ने, कि एक तो मुंह के ऊपर, एक मुंह तो यह भाव है अगे आने वाले समय विच, आने वाले समय विच जिहड़ा फ्यूचर विच चलता है, उहदे विच मुंह दे चोटा नहीं खाएगा, हुण अगे चोटा नहीं खाएगा, क्योंकि वो चोट है भी तो नहीं है, बराबर है। हुण चेंज नूं जीण दा सौखा हो गया हूं, क्योंकि सत का ज्ञान है, सत दे दर्शन हैं, मन विच बुद्ध है, आनंद है, मन का रंग फर्क हो गया पहले नालों, बाहरमुखी जीवन ना होके अंतर्मुखी हो गया। तो मौत अगर असी चेंज गिनीए मौत नूं, इत्थे जम शब्द वरतिया साहिब ने, मन्ने जम के साथ। पहला मेरे जीवन में चेंज आंदा सी, और वो चेंज मैनू बहा ले जांदा सी, मैं नहीं रहिंदा सी फिर, क्योंकि मैं उसे चेंज करके इंस्टेबिलिटी में चला जांदा सी, और फिक्र विच मेरा मन भी बह जांदा सी। उसकी परेशानी, उसकी फिक्र और वरी, एंजाइटी, ਉਹਦਾ स्ट्रैस, ਇਹ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल बहा ले जाता सी, जिवें जम के साथ ना जाए, पहले साथ ही चला जाता सी, कोई चेंज आया तो मैं बह गया नाल ही। मेरे हुण स्टेबिलिटी कुछ पैर ही रहे नहीं जीवन ते, मैनू अपना कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं हाँ कि नहीं हाँ,
बिल्कुल पैनिक विच आ गया। यह सब भावनावां जड़ियां ने नाम की घाट करके है, क्योंकि मैं नाम की थिरता नहीं जानी, इस करके मैं बह जाना। जिथे भी मैं थोड़ा जिहा चेंज आता है उत्थे मेरे पैर ही नहीं रहिंदे। महाराज कहने अगर कोई अल्टीमेट चेंज भी होएगा, अगर जम भी आ जाएगा तां भी कुछ नहीं फिक्र होएगा, क्योंकि यह जिहड़ा मन है यह स्थिर अवस्था का ज्ञान रखता है। हुण जिथे नाम का प्रकाश है, नाम के दर्शन हैं, जिथे गुरु और सिख के रिलेशनशिप एक मिकता आ गई है। मेरा झूठा मन त्याग के मैं सत गुरु मन विच पा लिया है। विकास शब्द मरत्या महाराज ने, नानक भगतां सदा विकास, सुनिया दुख पाप का नाश। महाराज सानू मन के बारे वो गहन ज्ञान देंदे ने जिहड़ा सानू किसी भी समय विच लोड़ है, किसी भी स्थान विच लोड़ है, किसी भी रिलेशनशिप विच लोड़ है, किसी भी कॉज विच लोड़ है। क्योंकि मन के चेंजिंग माइंड नू कंट्रोल करने वास्ते, कंट्रोल वैसे गलत शब्द है, मन नू जितण वास्ते, मन के उस अवस्था का लोड़ दी ज्ञान की लोड़ है जिहड़ी स्थिर है, जिहड़ी सदा है और विकास विच है। उसदे नाल बिना जुड़े असीं जीवन के सत्य नूं नहीं जान सकते। पर जदों असीं उहदे नाल जुड़ गए, मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, बुद्ध हो गया, ज्ञान के दर्शन हो गए, जान ले सारे भेद जीवन दे, क्योंकि एक मन नूं पूरी तरह जान लिया। मन रंगे गया गुरु के शब्द नाल। साहिब दे इस दर्शन विच गहनता है, प्रेम है, इस सुरत विच शक्ति भी है और प्रेम भी है, दोनों नाल नाल पावर है इत्थे। यह मन दे विच एक खेड़ा लियाएगी, भावें बाहर जो मर्जी हुंदा होए। वैसे असीं जदों एकागर हुंदे आ ते होर भी कई भावनावां नाल एकागर हो जांदे आ। गहन गुस्सा करदे आ तां असीं एकागर हो जांदे आ, क्योंकि गुस्से विच शक्ति मन की एनर्जी लग रही है इमोशनस तो। असीं बहुत ज्यादा किसी नाल गुस्सा कीता, असीं उत्थे एकागर हो गए हैं। तो आप अपने मन नूं कदे नोट करना कि बहुत ज्यादा गुस्सा कीता, थोड़ी देर बाद तुसीं शांत हो गए और गिल्ट हो गए फिर एकदम, क्योंकि जदों तो ऐ तो मन ऊपर उठिया तो एकदम शांत हो गया, फिर तो एकदम गुस्सा आंदा है, एकदम चला जाता है। क्योंकि गुस्सा जिहड़ा है, ए जिहड़ा एंगर है, ए कारण करके घट है, मन की अवस्था करके ज्यादा है। मन दे द्वैत तो परेशान, मन की इंस्टेबिलिटी तो परेशान, मन की कन्फ्यूजन तो परेशान, एकाग्रता लभदा मन। तो क्रोध एक कारण बन जाता है, तो उत्थे भी एकागर होता है, पर वो एक नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि गुरमत वल नहीं है, उहदे च प्रेम की गैर हाजरी है। तो प्रेम हाजिर होएगा अगर, तो वो सुरत का रूप ले लेगी। शक्ति और प्रेम दोनों सुरत दे फिर हाजिर हैं। साहिब गल की है कि यह जिहड़ी सुरती है, इसनूं आप समझ लो जिवें रुपए का धागा होएगा और एक सोने की सुई है किधरे ऊपर,
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। सोने की सुई होए रुपए का ताका, भगत नामदेव का शब्द है। एक आप नाल मैं एक होर शब्द साझा करांगा, शायद सानू कोई यह गल ना दस पाए तो मैं यह जिहड़ा मेरा एक्सपीरियंस है मैं इहदी गल आप नाल शेयर करदा हां। बाणी विच एक शब्द आंदा है, पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जगन लहन से हो साई कन्नो दात। मैं फिर करता हूं रिपीट, पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जगन लहन से हो साई कन्नो दात। पहर दी गल समय नाल रिलेशन रखती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਲਈ। एक बंधन है, और ਅਸੀਂ जितने ज्यादा डिपेंडेंट फिजिकल ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ उतना ज्यादा बंधन होएगा। इस करके जितनी ज्यादा माया, जितनी ज्यादा पावर होएगी उतना दुख ज्यादा होएगा, डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पैसा और माया नीड्स रिलेटेड तो है, सुख रिलेटेड नहीं है। प्लेजर तो दे सकते हैं बट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। वो एक मिराज है, ऐसे माया के है। तो आजाद कौन है? तुसी 100 जंगल विच उहनूं बंद हो, जिहदे कोल सुरत दी आजादी है, दरअसल आजाद दुनिया विचों ही है। तो आप देखोगे 17वीं और 18वीं सदी के जिहड़े सिख सन, उन्हां कोल कोई मीनस नहीं सी, पर उन्होंने सुरत आजाद सी। उन्होंने मीनस बना ले जिथे नहीं भी बन सकते सी। कल मैं एक पुरातन हिस्ट्री तो 1746 की कुछ गल सुनता सी कि सिखा दे हमला होया, लखपत राय दे भरा ने किया। जसपत राय सिख जंगल विच लंगर खांदे सी, तो उन्होंने उन्हें बेनती की कि लंगर खाण दे सानूं असीं फिर तेरा सामना करते हैं। तो वो जबर विच हाथी ते चढ़ के आया। हुण जसपत राय नूं यह भाव है कि मैं हाथी ते चढ़ के आया, धरती ते बैठे सिख मेरा की बिगाड़ देणगे। बिल्कुल ठीक गल है, असीं सारे मन्नांगे, पर यह असीं यह कैलकुलेशन नहीं की कि यह जिहड़े सिख ने इन्हां दा मन सुरत आजाद है। इसका मतलब कि ये डायमेंशंस ऑफ थॉट इनफाइनाइट हैं। इन्हां नूं विवेक इन्ना है कि सोझी इन्हां नूं निरंकार वैसे ही बख्श देगा। तो जंग दे विच एक सिख ने हाथी दी पुछ फड़ के उहदे उपर चढ़ गया। पॉसिबल ही नहीं है, किवें होया? क्योंकि सुरत इन्नी आजाद है, बुद्ध है, प्रेम नाल भरी है गुरु दे, कि उन्होंने शक्ति अपार है। वो हाथी दे ऊपर पुछ नाल चढ़ के उहदा सिर वड़ गया। मैं आपनू इस तरह यह गल दसदा हां कि जिहड़ी चीज़ां सानू लगदियां हैं कि ते इंपॉसिबल है होण वालियां, और शायद अज दी तरीक च साडे चों कोई ना कर पाए।
क्योंकि ओहो जी सुरत ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ऐसे करके पंथ का रंग जो अज है वो रियलिटी अज उसे करके हो रही है, क्योंकि मेरे अंतर का अभ्यास, मेरे अंतर का ज्ञान सुरत बुद्ध नहीं है, सुरत का ही ज्ञान नहीं है, द्वैत विच ही घूमदा हाँ। तो इस करके कॉन्फ्लिक्ट सानू अट्रैक्ट करते हैं। जिथे शोर मचदा है, गुरुद्वारियां दी कमेटियां दी लड़ाइयां, पावर दी लड़ाइयां, गोलक दी लड़ाई, यह सब सानू अट्रैक्ट करता है, क्योंकि शोर अंतर विच है, एकाग्रता नहीं है। और साडे कोल मीनस भी नहीं हन हुण, क्योंकि असी सोच भी आजाद नहीं रखी है। तो कौमी तौर पे अगर पंथ नूं असी उजागर करना है तो मैनूं लगदा कि सब तो पहल अंतर दे अभ्यास दी गहन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उहदे बिना इस मार्ग ते टुरे भी ना टुरे बराबर है। जितना प्रेम तो दूर धर्म या पंथ चला जाएगा उतना वो सुपरफिशियल हो जाएगा, उहदी भावना घट, रूल्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स नाल फिर बन्निया जाएगा, होर कोई तरीका है नहीं। तो इत्थे महाराज सानू समझा रहे हैं पहले पहरे फुलड़ा। पहले पहर मतलब जिहड़ी रात दा फर्स्ट पोर्शन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फुल ਬਣਿਆ है, कहते हैं फल भी पच्छा रात। यह जिहड़ा फुल है यह फल लगेगा इसनूं पिछली रात में। महाराज आप नाल मैं शेयर करदा हाँ कि पहले पहर जदों असीं आराम लैंदे हां तां सुरत नूं तैयार कर रहे हैं। रैसट नाल असीं दिन दे पूरे एक्सपीरियंसिस नूं नींद के जरिए अब्जॉर्ब करा रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जान। तो इस करके गहन नींद लेना भी जरूरी है, भावें लंबा ना लईए पर गहन रूप च लईए, क्योंकि नींद साडे अंतर दे इनकंप्लीटनेस नूं पूरी कर दिंदी है। या ध्यान कर ली गल फिर एक हो जाती है। पर साहिब इत्थे सानू समझा रहे हैं कि पहले पहर विच असीं फुल तैयार कर लिया, हुण मन एकागर हो गया, हुण सुरत हो गई, सुरत तैयार हो गई। फल भी पच्छा रात, इनू फिर पिछली रात विच फल लगेगा। जदों मैं एकागर मन की अवस्था विच गुरु के दर्शन विच बैठांगा, इनू फल लगेगा। फिर की होएगा? जो जगन लहन स्यों साईं कन्नो दात, जेड़े जग के साईं दे कन्नो दात लैणगे, किरपा उन्होंने मिलेगी। पर ये विच देखो थोड़ा जा समझा दईए कि स्टेबल माइंड की जरूरत है। अगर मन विच बहुत ज्यादा परेशानियां ने, फिक्र ने, तो हाले सबर चाहिए है, अंतर अरदास रखनी है। एक एक्सपीरियंस करदा तुहाडे नाल सुरत दी जिहड़ी अमृत वेले की असीं गल करदे सी। अमृत वेला असीं कहंदे हां, पिछली रात की गल करदे हां जदों, तां सुरत नूं तैयार करदी पहली रात विच। पिछली रात विच फिर फल लगदा, उसनूं नाम दे दर्शन होंदे हन। सुरत दी खेड है, सुरत दे ज्ञान दी खेड है, बुद्ध बनन दी खेड है, भ्रमण तो हटन दी, स्टेबिलिटी वल जाण दी खेड है। और अगे मुंह विच मतलब अगे मुंह चोटा ना खाए, अगे विच चोटा नहीं खाएगा। ध्यान और प्रेम दा मिलन सुरत दा अवस्था है। इसनूं असीं जान लईए कि जिहड़ी बुद्ध दी अवस्था है उहदे विच की सानूं मिलदा है। की है बुद्ध की अवस्था? जाको गुरमुख हृदय बुद्ध, ताके करतल नवनित सिद्ध। हृदय विच बुद्ध आ गया,
मन बदली हो गया, बुद्ध ज्ञान ਵੱਲ चला गया। मत ਜਿਹੜੀ मन की अवस्था है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मत ਦੀ है और मन है। मत ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾਵਾਂ, और सुरत ਵਿੱਚ प्रेम है, इस करके कोई इच्छा नहीं है। स्टेबिलिटी है, सैटिस्फैक्शन है, सेशिएशन है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਾ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈਏ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, बुद्ध मिल गया, सत दे दर्शन हो गए, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। नाम दे विच लीन होके तत् दा ज्ञान हो जाता है, बुद्ध मिल जाता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, तत् ज्ञान कितने है। चेंज तो परे चले गए फिर असी। फिर मैं समझावा फिजिकल प्लेन में फिर भी चेंज मिलेगा, पर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अंतर विच नाम का प्रकाश है। तो जिहड़ी एबिलिटी है, इहो जिहे जन की जीवन की एबिलिटी है, अजर नूं जर लैंदा है। अजर जिहड़ा जरिया ना जा सके उन्होंने भी जर लेगा, क्योंकि मन विच एक स्थान है, स्टेबल स्थान है। मन दे विच एक खेड़ा है जिहड़ा चार्ज कर रहा माइंड नूं। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसा नाम निरंजन होए, बिना अंजन दे, बिना कालक दे, बिना पोल्यूशन दे, निरंजन। नाम दे विच निरंजन उतर गया, कंप्लीटनेस उतर गई। मन विच हुण इन्हां दा ज्ञान हो गया, नाम दा और कंप्लीटनेस दा। मन्ने दी अवस्था दी गल चला रहे हैं साहिब। महाराज कहते जे को मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोय, फिर वो मन कोय दी अवस्था में चला गया। हुण नॉर्मली जो हर एक दा मन हुंदा है, उस तो फर्क होके मन कोय हो गया। जे को मन जाने मन कोय, जिवें गावे को दी गल हुंदी सी, कोई होर मन दी अवस्था है। ए मन कोय मन दी एक उन्मन दी अवस्था है। जिस मन ने उस अवस्था नूं जान लिया, वो मन कोय हो गया। चॉइस साडी है, असी मन कोय नूं बनना है कि नहीं बनना है। जितने दिन जीवन है, शब्द और सुरत की कमाई विच इस नूं कमाया जा सकता है। संकल्प असी करना है, प्रेम विच अरदास असी करनी है, सत दी भाल विच असी गुरु नूं नाम विच अपनाना है। अपने दुख दर्द परेशानियां नूं नाम विच लीन करना है।
ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੋਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। जिस मन विच इस बुद्धा एक्सपीरियंस हो गया वो मन कोय हो गया। एकाग्र मन विच शब्द दा अभ्यास करन नाल ਇਹ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਚੱਲਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ।